Hello everyone, welcome to Alifer Academy. Welcome to another lecture of Engineering Mathematics 1. So in the last lecture we have discussed about the mean value theorems. First one, Lagrange's mean value theorem applicable for the one function, and second one, Cauchy's mean value theorem applicable for the two functions. And today we are going to start a very new fresh topic which is called expansion of series. तो इसको हमने एक चैप्टर की तरह ही अलग से बना दिया है, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन. किसी भी फंक्शन का, किसी भी दुनिया के अंदर कोई भी फंक्शन होगा उसका एक एक्सपेंशन किया जा सकता है. एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस दीज टू टॉपिक्स, टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2. टॉपिक नंबर 1 इज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन बाय मैक्लॉरिन सीरीज. ये क्या नाम है? मैक्लॉरिन. दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन बाय टेलर सीरीज. टेलर सीरीज. So these are two topics actually in this chapter which we will discuss in here. तो एक है मैक्लॉरिन और दूसरा है टेलर्स. So these topics will be discussed here in this chapter. So only there are two topics only. So today in this lecture we will discuss Maclaurin series and Maclaurin से किस तरह से किसी फंक्शन का एक्सपेंशन किया जाता है, ये आज हम सीखने जा रहे हैं. तो पहले तो हम इसका छोटा सा प्रूफ देखेंगे, है ना. कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है मैक्लॉरिन का. So first of all we will discuss the statement of Maclaurin series. This is the statement, please see it very carefully. क्या लिखा है? ध्यान से देखिए. Any function fx, कोई भी फंक्शन होगा f of x, this one, any function fx can be expanded. Any function fx can be expanded, such that fx equal to देखो राइट साइड में क्या लिखा है, fx equal to f0 means the expansion starts from with respect to origin or original value of the function. क्या लिखा है? fx equal to f0, initial value of the function f0, x into f dash 0, x square upon 2 factorial f double dash 0 plus x cube upon 3 factorial f triple dash 0 and so on up to x to the power n upon n factorial into fn 0. fn means nth derivative, n times differentiation, right? तो क्या लिखा है ये? fx is a function of x such that fx is expandable in the ascending powers of x and differentiable term by term any number of times, because we are using the number of derivatives f dash, f double dash, f triple dash, f to the power n, मतलब fn dash, nth order derivative. So it may be differentiable n number of times. Then fx can be expanded with respect to its original value, or you can say origin value, or you can say the functional value. So f of x equal to f0 plus x into f dash 0 plus x square upon 2 factorial f double dash 0. तो सीधी बात ये है कि जितनी पावर है ना x की, उतना ही फैक्टोरियल अपॉन पर है और उतनी ही बार डिफरेंशिएशन किया गया है. क्या कहा? फिर से सुनिए. अगर यहां एक भी x की पावर नहीं है तो एक भी फैक्टोरियल नहीं है, एक भी डेरिवेटिव नहीं है. x की पावर 1 है तो अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, इसलिए लिखा नहीं गया, और एक ही डेरिवेटिव है. x टू द पावर 2 तो नीचे 2 फैक्टोरियल और 2 डेरिवेटिव्स. x to the power 3 तो नीचे 3 factorial 3 derivatives, and all these are derivatives at the origin 0. मतलब फंक्शन के अंदर आपको अपनी तरफ से क्या रखना है? 0 रखना है. So this is the formula for Maclaurin series, जो आपको सीधा डायरेक्ट याद रखना है for your engineering syllabus and for other syllabus. ये कुछ मेंस एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, ये इसका प्रूफ में, उसका प्रूफ भी आपको ध्यान से देखना है. तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ प्रूफ क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर a polynomial of n degree like a0 plus a1x plus a2x square a3x cube and up to an x to the power n. This is n degree polynomial starting from the constant a0 a0 and a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3 और ऐसे ही लास्ट में an x to the power n. This is any continuous function which can be expanded. Means आप x to the power n का n number of times derivative differentiation कर सकते हैं. बात समझ में आई? So
अब इसमें क्या करना है, इस फंक्शन में आपको 1 बाई 1 x की वैल्यू 0 रखते चले जाना है। क्या रखना है सर? x की वैल्यू 0, और एक बार डिफरेंशिएशन करना है फिर 0 रखेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है फिर 0 रखेंगे। तो ये प्रोसेस मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स करते रहेंगे एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन। सो मेन चीज है ये पॉलिनोमियल, इसको कंसीडर करना। n डिग्री का जनरल पॉलिनोमियल है, सब जानते हैं n डिग्री का पॉलिनोमियल यही होता है। सो फर्स्ट थिंग, पुट x इक्वल टू 0 इन दिस फंक्शन। तो जब आप x को 0 रखेंगे तो सर क्या होगा, यहां सब आगे की टर्म्स 0 हो जाएंगी एंड दिस वैल्यू a0 will become f0, f of 0, a0 is equal to f of 0। तो फर्स्ट वैल्यू a0 की आ गई ना आपके पास, f of 0। सेकेंड थिंग, you have to differentiate this function, equation number 1। so differentiating equation 1, then a0 will be 0, constant की वजह से 0 हो गया। a1 x की पावर 1 will be differentiated as 1, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ये x स्क्वायर दिख रहा है, इसका 2x हो जाएगा तो 2a1x हो गया। नेक्स्ट a3x क्यूब, सो 3x स्क्वायर हो जाएगा तो 3a3x स्क्वायर and at last an, and the derivative of x to the power n will become n into x to the power n minus 1। clear है यहाँ तक? now you have to put x equal to 0 again in this first order derivative, so it will become f dash 0। फर्स्ट वाला तो 0 हो ही चुका है, यहां सिर्फ a1 को छोड़कर बाकी सभी में x है एंड इफ यू पुट x equal to 0 here, अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे then you can see the terms except a1, all other the terms except a1 will become 0। a1 के अलावा बाकी सब 0 हो जाएगा, so it will become f dash 0 equal to a1। so finally you will see a1 equal to f dash 0। okay, नेक्स्ट है कि इस इक्वेशन नंबर 2 जो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। सो f डबल डैश, सो अगेन a1 फिर से क्या हो जाएगा, a1 0 हो जाएगा और ये a2 है, दिस इज नॉट a1, दिस इज a2, दिस इज a2। ओके, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, a2, दिस इज a2। प्लीज, a1 का 0 हुआ, सो 2a2 x का 1 हो चुका है, 3a3 x स्क्वायर, तो 3 2 6 a3 x स्क्वायर एंड आगे n और एक और पावर आएगी n minus 1, an x की पावर n minus 2। so in this way you can see here, if you put x equal to 0, then the values except 2a2 will become 0। ये आगे की सभी वैल्यूज में x आ रहा है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगी। सो f डबल डैश एट 0 विल बी इक्वल टू 2a2 आ जाएगा। तो देखो यहां पर जैसे आपने x को 0 किया तो f डबल डैश 0 इक्वल टू 2a2 एंड फ्रॉम दिस कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a2, सो इट विल बिकम f डबल डैश 0 अपॉन 2 and 2 is the value of factorial 2, so we are just representing the values in the factorial notations like this, a2 equal to f double dash 0 upon a2 factorial, a2 equal to f double dash 0 upon 2 factorial। so in this way you can see the value of a2 is in the terms of derivative, double derivative, and there is 2 factorial in the denominator। now एक step और देखिए, differentiating this equation number 3, this one once again, एक बार और करते हैं इसका। सो f ट्रिपल डैश 3 टाइम डेरिवेटिव, तो ये 2a2 0 होगा, x स्क्वायर के साथ में क्या होगा, नहीं x स्क्वायर नहीं आएगा, 3 2 जा 6 x होगा ना, हाँ 3a3 x स्क्वायर का, तो 3 2 जा 6a3 x होगा। नाउ अगर हम इसका एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2a2 0 होगा, 6a3 x का 1 हो जाएगा और आगे एक और डेरिवेटिव लिखेंगे तो देखिए ना क्या बनेगा, कुछ ऐसा होगा, f ट्रिपल डैश 6a3 एंड मेनी टर्म्स एट लास्ट 3 फैक्टर्स n minus 1 n minus 2 a n x to the power n minus 3, 3 बार डेरिवेटिव हो गया। अब फिर से आप इसमें x को 0 करें, x को 0, तो 6a3 के अलावा बाकी सब 0 हो जाएगा, ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट 6a3 विल बिकम 0, बाकी सब वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। देन f ट्रिपल डैश 0 इक्वल टू 6a3,
और यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A3 इक्वल टू F ट्रिपल डैश 0/6, राइट। अब जरा 6 फैक्टोरियल, 6 की जो वैल्यू होती है फैक्टोरियल में वो 3 फैक्टोरियल होती है ना, सो 3 फैक्टोरियल इज जस्ट इक्वल टू 6. सो टू रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट A0, A1, A2, A3 in the factorial notation we are converting the number into factorial. Like here 2 को हमने 2 factorial लिखा and 6 को 3 factorial, 3 into 2 into 1 तो 6 होता है. That's why A3 is equal to this. बस इसके आगे आपको कुछ नहीं निकालना. After that you have to write it similarly. A for A4, F fourth derivative 0/4 factorial, A5 तो 5 factorial 0/5 factorial, and similarly An Fn 0/n factorial. So these kinds of coefficients will be obtained here. इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएंगी. After that you have to substitute all these coefficients A0, A1, A2, A3, A4, A5 all these in the given original जो हमने फंक्शन माना था इसमें A0, A1, A2, A3 इनमें आप इसमें वैल्यू रखेंगे. तो जब आप वैल्यू रखेंगे सर तो देखो ऐसे नहीं हो जाएगा. ये A0 की वैल्यू F0, ये किसकी वैल्यू है A1 की F डैश, ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये दिखाई दे रहा है, ये किसकी वैल्यू है बताओ, ये है A2 की F डबल डैश 0/2 फैक्टोरियल. सिमिलरली दिस वन A3 की वैल्यू है F ट्रिपल डैश 0/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. एंड नाउ अरेंज करके लिखो इसको. कैसे अरेंज करके, यानी फैक्टोरियल को x के साथ लिख दें तो चलेगा, जैसे x² 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल, थोड़ा लिखने में अच्छा लगता है. दैट्स वाई. So fx equal to f0, x into f dash 0, x² 2 factorial f double dash 0, x³ 3 factorial f triple dash 0, x³ 3 factorial f triple dash 0 and so on. तो ये है आपका वो प्रूफ जो हमने स्टेटमेंट में लिखा था. बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान. You have to consider one function A0, A1, A2, A3 and so on. And after that you have to make the arrangement in such a way that एक बार x को 0 रखते चले जाइए, फिर डिफरेंशिएशन करो, फिर 0 रख दो, फिर डिफरेंशिएशन करो, फिर 0 रख दो, and then you will get the values of A0, A1, A2, A3 in this way. अब वापस इसे उस पॉलिनोमियल में रख दीजिए and then you will get this type of expression of Maclaurin series. अब ये एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा लाइक दिस. ये लिखा है जैसे एक्सपेंड e to the power x by Maclaurin series. Maclaurin series से एक्सपेंड करेंगे हम इसको. तो देखो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको फंक्शन पहचानना है. गिवन जो टर्म है उसमें फंक्शन क्या होगा, फंक्शन. सो फंक्शन में क्या है सर, f of x is equal to e to the power x is equal to e to the power x. और थीम ये है कि जो फंक्शन है फिर इसी के सामने आपको f0 निकालना है इसका, ठीक है, फिर इसका डैश निकालना है f डैश, और फिर इसके सामने f डैश 0 निकालना है, फिर इसके बाद f डबल डैश निकालना है, डबल डैश, एंड देन इसी के सामने f डबल डैश निकालते जाना है. सो ये जो वैल्यूज आएंगी ये वाली, इन सभी वैल्यू को इस फंक्शन के पॉलिनोमियल में रखना है, या f डैश, f डबल डैश, f डबल डैश वगैरह वगैरह. तो यहाँ पर इस फंक्शन को पहचान कर इसके डेरिवेटिव करते रहना है, एंड आफ्टर डेरिवेशन इसके सामने ही इसकी वैल्यू लिखते चले जाएंगे आप. ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसकी वैल्यू ऐसे लिखते चले जाएंगे. तो देखो आपकी सहूलियत के लिए मैंने इसको बहुत जल्दी से आपको समझाना है, बस उसके लिए इसको सॉल्व करके रख दिया है ताकि आप इसको देख पाएँ. नाउ कैन यू सी हियर, प्लीज पे अटेंशन. दिस वन fx है e की पावर x, और इसके सामने आपको दिखाई देगा ये, इसकी वैल्यू क्या दिख रही है, बोलो. 0 रखना है बस इसके आगे, f0. e टू द पावर 0 1 होता है. सिमिलरली हाँ जी, सिमिलरली इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव क्या होता है, e का तो e ही होता है, e का e होगा, फिर इसके सामने आप इसकी वैल्यू रख देंगे. फिर उसके बाद एक और डेरिवेटिव करेंगे तो e का फिर से e हो जाएगा सर, e का e हो जाएगा, फिर 0 रखना, तो फिर 0 रखेंगे तो e की पावर 0 का ये फिर से 1 हो जाएगा. एक और कर दो, 3-4 टर्म निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है, इन दिस वे. सो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको डेरिवेटिव करते जाना है 1 by 1,
और उसमें उसके सामने 0 0 रखते जाइए। फंक्शन में x की वैल्यू 0 रखते जाइए, और जब आप इसमें 0 रखेंगे सर तो आपको क्या मिलेगा, ये f(x) f(0) x f'(0) x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन। तो इन सब की जगह 1 1 1 रख देंगे, तो ये भी 1 हुआ, ये भी एंड सो ऑन। नाउ कैन यू सी e to the power x equal to 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial and so on. So this is the basic expansion of e to the power x. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये एक्सपेंशन है ना, तो इस तरीके से हम इसका प्रूफ कर देते हैं। तो जितने भी 12th क्लास के अंदर या उससे पहले आपने ये एक्सपेंशन पढ़े हैं ना, जितने भी फंक्शन के e का या log का, sin का, cos का, a to the power x का, वो सब इसी फॉर्मूले से निकल करके आए हैं। तो उनके एक्सपेंशन आप सीधे डायरेक्ट जो पढ़ते हैं ना, वो याद किया हुआ वो ये है, ये वाला। सो विद द हेल्प ऑफ मैक्लॉरिन सीरीज यू कैन एक्सपेंड एनी फंक्शन विच इज n नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएबल। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं, देखो जैसे ये है, एक्सपेंड sin x बाय मैक्लॉरिन सीरीज। साइन का, तो इसमें फंक्शन क्या होगा, यहां पर फंक्शन होगा sin x, फंक्शन विल बी fx इक्वल टू sin x। ठीक है, तो आपका काम क्या है, आप इसमें 1 बाई 1 डिफरेंशिएट करते रहेंगे इसका, और डिफरेंशिएशन करने के बाद इसमें सामने वैल्यू रखते रहना 0 0 0। तो देखो फिर से इस सवाल को देख लीजिए, देखो कैसे लिखा है। कैन यू सी हियर fx इक्वल टू साइन एक्स, fx इक्वल टू साइन एक्स दिखाई दे रहा है आपको, और इसी के सामने आपने वैल्यू रखनी है, साइन एक्स तो रख दिया आपने, ठीक है, साइन एक्स, और इसमें फिर आपको 0 वैल्यू भी रखनी है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है सर, क्या होता है साइन का डेरिवेटिव, बोलो। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, एंड इफ यू पुट कॉस 0 तो कॉस 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0 है तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी, सेकेंड टर्म बचेगी कुछ 1। आफ्टर दैट ये वाला देखो, एक और डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, कॉस का होता है माइनस साइन, फिर 0 रखेंगे तो माइनस साइन 0 अगेन 0, ओके। एक और बार इसका डेरिवेटिव करो क्योंकि 0 तो हमें वैल्यू चाहिए नहीं, अगेन साइन का डेरिवेटिव कॉस विद द नेगेटिव साइन, वो ऊपर से चला आ रहा है, फिर इसमें 0 रखेंगे तो माइनस कॉस 0 तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 0 माइनस 1। नेक्स्ट अगेन डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस, तो इट विल बी प्लस कॉस, एंड आफ्टर दैट इफ यू पुट x इक्वल टू 0 तो फोर्थ डेरिवेटिव f0 sin 0 विल ऑल्सो इक्वल टू 0। तो फोर्थ वैल्यू मिली नहीं आपको, एक और लेना पड़ेगा आपको, तो ये देखो फिफ्थ वैल्यू, साइन का डेरिवेटिव फिर से cos, एंड cos 0 फिफ्थ डेरिवेटिव 1 हो गया। सो इन दिस वे यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3 वैल्यूज, 3 टर्म्स। तो हमें देखो यहाँ पर एक के बाद एक 0 मिलता जा रहा है, इसलिए हमने 6 या 5 डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली है। आफ्टर दैट एक्सपेंड द मैक्लॉरिन सीरीज अप टू f5। तो देखिए ना कैसे बनाइए, f0 x f'0 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0 x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल f4 0 एंड 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल f फिफ्थ 0, f फिफ्थ मतलब फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो ना, फर्स्ट वाला f0 तो 0, तो फर्स्ट टर्म 0, फिर x इंटू f डैश, तो f डैश है 1, x स्क्वायर ये x स्क्वायर वाला 0, फिर x क्यूब दिस वन थर्ड वन माइनस 1, दिस इज माइनस 1, फिर फोर्थ वाला 0 तो ये फोर्थ 0, एंड फिफ्थ वन x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड दिस इज f5 1 हो गया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन सी हियर दैट x क्यूब x5 x7 x9 एंड सो ऑन, दीज आर ऑड पावर्स, और जो यहाँ का साइन है प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है। इट मीन्स जो साइन का एक्सपेंशन होता है वो ऑड पावर्स में होता है, किस में होता है, ऑड पावर्स में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन विच इज इन x की पावर ऑड 1 3 5 7 इस तरह से। तो ध्यान रहेगी ये चीज, ठीक है। एक और सवाल दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो कहां गया, हाँ जी ये है सवाल, ये है log sec x का, ठीक है, किसका, log sec x का। तो इसमें फंक्शन क्या होगा, log sec x, द फंक्शन विल बी log sec x, ठीक है, फंक्शन क्या होगा, log sec x। तो जरा इसको भी देख लीजिए आप ध्यान से थोड़ा, क्या लिखा है इसके अंदर, ये
देखो आपको थोड़ा सा ब्राइट दिखे इसलिए थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ इसे. यस, द गिवन फंक्शन इज e टू द पावर x, e टू द पावर x, हाँ जी, नहीं e टू द पावर x sec x. यस, ये है गिवन फंक्शन e टू द पावर x sec x. नाउ थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है. पढ़ो इसको, क्या लिखा है, किस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. गिवन फंक्शन, देखो फर्स्ट टाइम व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0 इन द फंक्शन, जब आप फंक्शन के अंदर ही x को 0 रख देते हैं, x को 0 फंक्शन के अंदर, ओरिजिनल फंक्शन के अंदर, ठीक है. तो जब आप इसके अंदर 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 इंटू sec 0, तो e की पावर 0 कितना होता है सर, e की पावर 0 1 होता है, sec 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इट विल बिकम 1. अब इसका डेरिवेटिव करना है. सो जब डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको. e एज इट इज sec का होता है sec इंटू 10, ये दिख रहा होगा आपको. e एज इट इज sec का क्या लिखा है, sec इंटू 10, sec x इंटू 10x, ठीक है. और अब आप इसमें 0 रखेंगे, f डैश 0, सो e की पावर 0 sec 0 tan 0, tan 0 इज इक्वल टू 0, तो इसलिए क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म 0 और e की पावर 0 इंटू sec 0 1, सो 0 प्लस 1, तो क्या आया फाइनली 1 आ गया. अच्छा, अगर इसमें फर्दर हम डेरिवेटिव करना चाहें तो ये वाली टर्म्स को हम कॉमन ले रहे हैं. देखो e की पावर x sec x, ये दोनों जगह से e की पावर x sec x, तो tan x प्लस 1 हो गया, ये वाला tan x प्लस 1. और अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव अगेन निकालने के लिए, f डबल डैश निकालने के लिए इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. e टू द पावर x sec एज इट इज, एंड ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन, tan का क्या होता है sec स्क्वायर, तो यहां पर भी एक sec है, तो क्या बन गया, ये sec क्यूब बन गया. देख रहे होंगे आप इसको, sec क्यूब x, ठीक है. एंड देन नेक्स्ट क्या है, देखो जब हमने 1 प्लस 10 को यहां पर एज इट इज लिख दिया, 1 प्लस 10 को ऐसे लिख दिया ये, तो देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x sec x का, तो e की पावर x sec x का ये जो डेरिवेटिव है, ये सामने जो दिख रहा है आपको, e टू द पावर x sec x, यही तो टर्म है ना. और इसका डिफरेंशिएशन करके आपको मिला क्या, असल में इसका डिफरेंशिएशन करके यही तो आया, नहीं आया समझ. e की पावर x sec x का डेरिवेटिव यही तो है. तो जब आप इस ब्रैकेट को रोकेंगे और इस वाले e की पावर x sec x का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो, और इसका डेरिवेटिव ये पूरा है, ये पूरा, तो इस पूरे की वैल्यू यहां आ जाएगी, e की पावर x sec x 1 प्लस 10x, और फिर ये ब्रैकेट का भी 1 प्लस 10x लिखा है. समझे आप, नहीं समझे. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, tan का किया तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर, इसलिए क्या बन गया पूरा, sec क्यूब हो गया, sec क्यूब ये वाला. अब उसके बाद ये ब्रैकेट आपने एज इट इज रख दिया, ये ब्रैकेट एक पावर में आ गया. फिर आप e की पावर x sec x का डेरिवेटिव करेंगे सर, e की पावर sec x का, तो e की पावर sec x ये ऊपर डेरिवेटिव जब हमने इसका किया तो ये पूरी वैल्यू आई थी ना, तो फिर ये पूरी वैल्यू यहां मल्टीप्लाई नहीं करेगी, तो इसलिए लिखा e की पावर x sec x एंड 1 प्लस 10x, और एक पहले से था तो इसलिए स्क्वायर हो गया. समझे, ये है ट्रिक. थोड़ा सा डेरिवेटिव करके देख लेना. अब इसमें 0 रखो तो e की पावर 0 sec 0, ये 1 हो जाएगा. अंदर देखो 1 प्लस tan 0 कितना होगा, ये वाला 0, तो 1 प्लस 0 एंड e की पावर x sec x फिर से 1 हो गया. एंड फाइनली यू कैन सी दैट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. सो यहाँ पर आपको 3 टर्म्स मिल चुकी हैं, f0, f डैश 0, f डबल डैश 0, और अब आप बस यहाँ तक एक्सपेंड कर दीजिए इसको. f0 1 है, f डैश 0 फिर से 1 है, f डबल डैश 0 2 है, एंड दैट इज ओके. और इस तरह से आप इसका एक्सपेंशन करके ये लिख सकते हैं. ठीक है, बात समझ में आई. तो यही है इसका एक्सपेंशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन ऑफ गिवन फंक्शन. ठीक है, ऑफ गिवन फंक्शन. देखो इसमें एक बात आपको समझनी होगी कि अगर आप नॉर्मली डिफरेंशिएशन करने लग जाओगे ना, तो एक बार यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फिर यहाँ लगाओगे, तो फंस जाओगे आप बुरी तरह. दैट्स वाई यहाँ से कॉमन ले लेना e की पावर x sec x, और फिर याद रखना कि e की पावर sec x का ये डेरिवेटिव पूरा वाला, ये वाला इसका डेरिवेटिव वो यही तो है, ये वाला जो है पूरा. जहाँ कहीं भी आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, बस ध्यान रखना कि जैसे हमने 1 प्लस 10 को रोका और इसका डेरिवेटिव करने के लिए गए, तो इसका डेरिवेटिव मतलब यही है, ये इसका डेरिवेटिव.
और इसका डेरिवेटिव ये पूरा है, पूरा एज इट इज, तो हमने उसको यहाँ लिखा है, ठीक है, इसलिए वो 1 + 10 का होल स्क्वायर हो गया, डबल। बाकी एक्सपेंशन आपके सामने है, ठीक है, समझ गए क्या? तो आ गई आपको बात समझ? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, a⁻x sec x। अच्छा 3 तो मैंने दिखाया नहीं आपको, log sec x, थर्ड वाला क्वेश्चन तो छूट गया था, मिस हो गया था। ये है log sec x, तो log sec x का भी देख लो कैसे होता है। log sec x का क्या लिखा है इसके अंदर भी, फंक्शन है log sec x। क्या है सर फंक्शन? log sec x, ठीक है। सो अब इस फंक्शन को देखो, ध्यान से देखो क्या होगा इसके अंदर कि fx log sec x है। आफ्टर दैट इसमें आप 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0, तो f0 log sec 0, log sec 0 होता है 1, तो log 1 विल बिकम 0, log 1 0, तो फर्स्ट वैल्यू 0 हो गई। ओके, अब उसके बाद इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, log करेगा 1/sec एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ sec sec × 10। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डेरिवेटिव टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएगी, है ना, यहाँ पर ये sec से sec कैंसिल हो जाएगा एंड 10 हो जाएगा, तो 10 में फिर से आप 0 रखेंगे, 10 0 इज अगेन 0। अब 10 0 को हमने f' को हमने y1 कह दिया यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी में इजी हो जाए, y1, ठीक। उसके बाद ये लिखा y2 sec स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर। अब sec स्क्वायर को क्या लिखा हमने, ध्यान से देखना, sec स्क्वायर को थोड़ा सा टर्म हमने चेंज कर दी, 1 + 10 स्क्वायर लिख दिया इसको हमने। क्या लिख दिया हमने? sec को 1 + 10 स्क्वायर, लाइक दिस। देख पा रहे हैं आप? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 10 को हम y1 कह रहे हैं एंड दिस y1 विल बिकम 1 + y1, 1 + y1। कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं आप, 1 + y1, ठीक है। अब y1, अब आप चाहते हैं y2 की वैल्यू निकालना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसमें y1 की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 1 + उससे 0 रखो तो 1 + 0 1 हो गया। ओके, अब y3 निकालना है सर, थर्ड डेरिवेटिव, तो इसी का डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव 1 का 0, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव। सो पहले पावर का होगा ये 2y1, दिख रहा होगा आपको 2y1, फिर y1 का होगा y2, तो फाइनली आपको क्या नजर आएगा 2y1 y2। इफ यू पुट y = 0 हियर, अगर आप इसमें 0 रख देंगे तो देखो इसमें y1 भी आ रहा है ना, y1, ये y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है 0, तो पूरा 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो इट विल बिकम 0, मतलब y3 की वैल्यू 0 हो गई है। अगेन आप चाहते हैं y4 निकालना, तो इसी का डेरिवेटिव करो, देखो कैसे, 2y1 एज इट इज, 2y1 एज इट इज, y2 का क्या होगा, नेक्स्ट डेरिवेटिव y3 प्लस, अब देखो आगे, ये 2y2 एज इट इज, 2y2 एज इट इज, ठीक। अब 2y2 एज इट इज हो गया, हाँ जी। अब y1 का करेंगे तो फिर से y2 आएगा ना, एंड y2 आएगा तो y2 का स्क्वायर हो जाएगा, y2 का स्क्वायर, एंड इन दिस वे यू विल गेट y4 = 2y1 y3 एंड 2y2 स्क्वायर। तो y1 को अगर अब आप 0 करेंगे तो y1 की वैल्यू तो ऑलरेडी वहां पर 0 है, देखो, तो फिर ये फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी, और 2y2 कितना है यहाँ पर, y2 की वैल्यू देखो सामने कितनी लिखी है 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर is equal to 2. So finally you can find these types of values of y0, y1, y2, y3, y4, और उसके बाद आपने ये फॉर्मूला लगाना है fx = f0 एंड अप टू f4 तक, है ना, फोर्थ डेरिवेटिव तक, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू रख दो, देखो फर्स्ट टर्म तो 2 टर्म्स तो 0 ही है, ये वाला डबल डैश वाला y2 वाला 1 है, तो कहाँ लिखा है, y2 वाला 1 है, ठीक है, ये 1 है, 1, 2 कहाँ से आ गया, 1 है, 1, दिस इज 1, x2/2 फैक्टोरियल f2 डैश मतलब डबल डैश ये वाला 1, तो यहाँ पर 1 रख देना, x3/3 फैक्टोरियल, अगेन थर्ड 0 है, फोर्थ वाला तो यहाँ पर ये 2 है, राइट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो ये फर्स्ट 2 तो 0 हो गई, x²/2, तो x²/2 लिख देना आप, इसको 2 छूट गया यहाँ पर, x²/2 प्लस x4 ये 4 फैक्टोरियल 24 होता है, और 2 से कैंसिल कर देना तो 12 आ जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ऐसे लिख देना लास्ट में, रिक्वायर्ड एक्सपेंशन ऑफ गिवन फंक्शन, ठीक है, ऐसे ऑफ गिवन फंक्शन। तो ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए जल्दी से मैंने
ये फंक्शंस में y1, y2, y3 में भी कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 10 लिखा, 10 का सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर बनाया, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है बस ये। और फिर इसको हमने y1 से रिप्लेस कर दिया यहाँ, ये y1 से, और आगे जितने भी डेरिवेटिव है वो इसी की टर्म्स में चलते रहेंगे और y1 का यूज़ हम यहाँ से कर लेंगे, क्योंकि y1 का जो बेसिक वैल्यू है वो 0 है और जहाँ कहीं भी y1 आएगा तो हम उसकी वैल्यू इस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 3-4 सवाल मैंने आपको समझाए हैं, इनका ध्यान रखना। ये 4th वाला क्वेश्चन अभी e⁻x sec x देखा आपने, तो ये भी 4th क्वेश्चन है। एंड बेस्ड अपॉन दिस देयर इज एन असाइनमेंट ऑल्सो ऑफ कितनी क्वेश्चन है, यस 5। देयर इज एन असाइनमेंट ऑफ 5 क्वेश्चन। साइन एक्स देखो, जैसे साइन का तुम निकल लिया ना यार, कॉस का करना, इसको आप कॉस बना लेना फिर। ठीक है, क्या कर लेना, इसका कॉस बना लेना, साइन का कॉस, कॉस लिख लो इसको, कॉस एक्स बाई मैक्लॉरिन सीरीज, e⁻x cos x, e⁻x sin x, tan इनवर्स और e⁻ sin x। इसी तरीके से इन सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, और इनके जो सॉल्यूशंस हैं PDF है, आपको इस टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, सोशल मीडिया लिंक्स हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस, है ना। तो पूरा जितने भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड, मैथमेटिक्स ऑप्शनल से रिलेटेड, कोई भी हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप इस पर पूछ सकते हैं। हमारे डिफरेंट टाइप के कोर्सेज भी होते हैं, आप उनको भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।